حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ملک میں گزشتہ 16 دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 14ویں بار اضافہ۔ اس دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ۔ ایک بڑا اور بہترین حیدرآباد بین الاقوامی ہوائی اڈہ، جس میں بڑے پیمانے پر توسیع پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کے بعد بہت سارے نئے اضافے ہیں، افتتاح کے لیے بالکل تیار۔ حیدرآباد کمشنر ٹاسک فورس سینٹرل زون کی ٹیم نے نقلی پولیس عہدیدار کو کیا گرفتار، جو شہر کے مختلف علاقوں میں خود کو ٹاسک فورس کا عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے عوام کو لوٹ رہا تھا۔ ریاست تلنگانہ کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز۔ اضلاع میں درجہ حرارت ریکارڈ سطح پر درج کیا جا رہا، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ خفیہ اطلاع پر اسپیشل آپریشن ٹیم ایل بی نگر زون ٹیم رچاکنڈا کے اہلکاروں نے ونستھلی پورم پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع پلاٹ نمبر 30 ستیہ نگر کالونی میں مارا چھاپا۔ IPL کرکٹ سٹے بازی کے ریکٹ کا کیا پردہ فاش۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم حیدرآباد نے فلکنما پولیس کے ہمراہ تارا زردہ فیکٹری پر مارا چھاپا اور الیگل قوام مٹیریل اور اچی ریڈی نگر فلکنما حیدرآباد کے ہمراہ 1 لاکھ روپے مالیت کے دیگر اشیاء کیے برآمد اور محمد جلیل خان کو کیا گرفتار۔ آندھرا پردیش کابینہ میں 11 اپریل کو بڑے پیمانے پر رد و بدل کا امکان۔ وزیر اعلیٰ وائی جگن موہن ریڈی نے 7 اپریل کو کابینہ کا اجلاس کیا طلب۔ مکہ معظمہ کی مسجد الحرام میں توسیع کے تیسرے مرحلے کے طور پر 80 نئے عبادتی ہالز کی کشادگی عمل میں لائی، جو اس سال رمضان کے دوران مصلیان کے لیے پہلی مرتبہ کیا گیا۔ چین میں کورونا کی وجہ سے حالات خراب ہوتے جا رہے۔ ملک بھر سے گزشتہ روز کورونا کے 16,412 معاملے درج کیے گئے۔ کورونا کی وبا کے آغاز سے یہ پہلا موقع ہے جب چین میں ایک دن میں اتنے مریض پائے گئے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192 لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ایک بڑا اور بہتر حیدرآباد بین الاقوامی ہوائی اڈہ، جس میں بڑے پیمانے پر توسیع پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کے بعد بہت سارے نئے اضافے ہیں، افتتاح کے لیے بالکل تیار ہے۔ راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے، جو تیزی سے ترقی کرنے والے ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے، اس نے 2019 میں 21 ملین مسافروں کو پورا کیا تھا اور بڑھتے ہوئے شہر کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ساتھ 2 سال پہلے ایک بڑی توسیع کے لیے چلی گئی تھی۔ توسیع جس کا مقصد 34 ملین افراد سے زیادہ مسافروں کو سنبھالنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ اس میں اضافی تعمیر شدہ علاقہ شامل ہے، جسے موجود انٹیگریٹڈ ٹرمینل بلڈنگ کے ساتھ ایئر سائڈ اور لینڈ سائڈ ایریاز میں اضافی انفراسٹرکچر کے ساتھ مربوط کیا جائے گا۔ GMR گروپ کے ایک وائٹ پیپر کے مطابق نئے سرے سے مربوط مسافر ٹرمینل کا رقبہ 3,79,370 مربع میٹر تک بڑھ جائے گا۔ اس میں 149 چیک ان کاؤنٹرز، خودکار ٹرے بازیافت کے نظام کے ساتھ 26 سیکیورٹی اسکریننگ مشینیں اور 44 امیگریشن کاؤنٹرز ہوں گے۔
हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने नकली पुलिस ओहदेदार को गिरफ्तार किया जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुद को टास्क फोर्स का ओहदेदार जाहिर करते हुए अवाम को लूट रहा था। 45 साल एम सरोजन कुमार जो स्टेशन घनपुर का रहने वाला है और रियल एस्टेट ब्रोकर है। साल 2007 से उसने तेलंगाना में 14 और आंध्र प्रदेश में 4 वारदातें अंजाम दी। 7 फरवरी को वो नेकलेस रोड पर कार में बैठे हुए जोड़े को धमकाते हुए खुद को टास्क फोर्स पुलिस का ओहदेदार जाहिर करते हुए एक फर्जी शनाख्ती कार्ड भी दिखाया और नकद रकम का भी मुतालबा किया था। इस सिलसिले में रामगोपालपेट पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था जिस पर टास्क फोर्स पुलिस ने इस नकली पुलिस ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया। एक खुफिया इत्तला मिलने पर स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन टीम रच्चाकुंडा के एहलकारों ने वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े प्लॉट नंबर 30 सत्यानगर कॉलोनी में छापा मारकर IPL क्रिकेट सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया और 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अफराद से 11,80,000 रुपए की खालिस नकदी जब्त की गई और एक्सिस बैंक और ICICI के 2 खातों में 31,17,576 रुपए मिले जो मरकजी बुकी साई राम वर्मा और रोमन कैथलिस्ट कलमदाई स्वामी के हैं। उनके कब्जे से एक लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन और दीगर मुजरिमाना मवाद भी जब्त कर लिए गए। मछलीपट्टनम का है, काफी दिनों से ये तमिल नागरू जी को वो साथ दे रहा है। उसके साथ साथ एक तन्नीर अशोक बोल के सिंगराई कोंडा प्रकाशम, एक चलमिटी विनोद करके सिंगराई कोंडा प्रकाशम आंध्र प्रदेश, ये सब बुकीज है। इनके साथ में 3 पंटर हमें मिले जिनका नाम है कोटला दिनेश भार्गव, मेडिसिटी किशोर और भोजना राजू। इन लोगों के 7 लोगों के हिरासत से तकरीबन हमने 11,80,000 कैश, उनके बैंक अकाउंट से 31,17,576 यानी कि 43 लाख कैश अभी हमें कैश और बैंक अकाउंट का फ्रीज अमाउंट हमें मिला है। और इनके पास से हमने एक मारुति कार, एक होंडा एक्टिवा और एक हीरो ग्लैमर 2 व्हीलर, 9 मोबाइल फोन, तकरीबन 56 लाख का प्रॉपर्टी बरामद हुआ है। कल जो राजस्थान रॉयल वर्सेस रॉयल चैलेंज बेंगलोर का जो मैच चल रहा था, ये 13th मैच था IPL का। इस मैच के दरमियान ये लोगों से बुकिंग लेके ये बेटिंग करवा रहे थे। उसी दरमियान हमें इंफॉर्मेशन आया और उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए हमारे DCP SOT मुरलीधर साहब के सुपरविजन में SOT टीम LB नगर इंस्पेक्टर अंजी रेड्डी, वनस्थलीपुरम इंस्पेक्टर सत्यनारायण और उनके टीम ने इस रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए इस 7 लोगों को हिरासत में लिया है। आने वाले दिनों में जो मेन ऑर्गेनाइजर है साईराम वर्मा जो फरार है, उसको भी हम पक्का अरेस्ट करेंगे। हमारे तेलंगाना स्टेट में सेक्शन 3 और 4 जो AP गेमिंग एक्ट जो तेलंगाना कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने फलकनुमा पुलिस के साथ तारा जर्दा फैक्ट्री पर छापा मारा जहां चिरेड्डी नगर फलकनुमा हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर किवाम मवाद तैयार किया जा रहा था। मोहम्मद जलील खान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसकी उम्र 33 साल है जो जर्दा मेकिंग बताया गया है और सैफी कॉलोनी फलकनुमा का साकिन बताया गया है। इफ्तिसार पर इंकशाफ हुआ कि किवाम एक ममनुआ प्रोडक्ट है लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के इरादे से वो गैर कानूनी तौर पर किवाम बनाता है और जरूरतमंद सार्फिन को फरोख्त करने के लिए उसे पैक करता था। MIM चंद्रनगुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने बरकत ZS जनरल हॉस्पिटल का बंडलागुड़ा में बारकस कॉरपोरेटर अब्दुल हफीज समद बिन अब्दाद, एक्स कॉरपोरेटर बारकस डिवीजन प्रेसिडेंट मिनहाज इब्बीस के साथ बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर बरकत ZS जनरल हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सादिका एंड MD जुबैर इब्बीस और दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। पेट्रोल और डीजल के अलावा दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिले निर्मल मुस्तकिर कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी हड़ताल का इनेकाद अमल में आया। मरकजी व रियासती हुकूमतों के खिलाफ इसका एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में निर्मल जिले कांग्रेस सदर P रामाराव पटेल, कांग्रेस कायदीन आनंद राव पटेल, मुत्तम रेड्डी, जमाल, श्रीनिवास, संतोष साई व दीगर भी मौजूद थे। నాయకులు ఉన్నారు, వాళ్ళు రాకుండా కూడా మాతో ఉన్నారు. ఎండ ఉన్నది, అది ఉన్నది అక్కడ కూర్చున్నారు కానీ మాతోనే వాళ్ళు ఉన్నారని అంటే ఇప్పుడు మారుతున్నారా అంటారు మీరు? ఇక
కార్యకర్తలే మీకు ఇంపార్టెంట్, నాయకులు కూడా చెప్తున్నారు కదా మీరు. నాయకులు కూడా ఇంపార్టెంట్, కార్యకర్తలు కూడా ఇంపార్టెంట్. కార్యకర్తలు అంటే ఓట్లు తీసుకురావడానికి కార్యకర్తలు కావాలి, నాయకులు ఊళ్ళే చెప్పడానికి కావాలా, నాయకులు కూడా కావాలా, కార్యకర్తలు కూడా కావాలి. కార్యకర్తలు వెన్నుమొక్క, నాయకులు కూడా మనకు సపోర్ట్. ఏదైతే కార్యకర్తలు వాళ్ళే వెన్నుమొక్క. नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश काबीना में 11 अप्रैल को बड़े पैमाने पर रद्दबदल का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने 7 अप्रैल को काबीना का इजलास तलब किया है, जिसमें काबीना में तब्दीलियों की इत्तला दी जाएगी। काबीना का इजलास 11 बजे दिन तलब किया गया, लेकिन बाद में उसे दोपहर 3 बजे तलब करने का फैसला किया गया। जगन के दौरे दहली और दीगर मसरूफियात के पेश नजर ये तब्दीली की गई है। तवक्को है कि काबीना इजलास में इन वुज़रा से इस्तीफा हासिल कर लिया जाएगा जिन्हें काबीना से अलहदा किया जा सकता है। ऐसे वुज़रा की खिदमत पार्टी के लिए हासिल की जाएंगी। काबीना इजलास के बाद जगन 8 अप्रैल को गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन से मुलाकात करेंगे और वुज़रा के इस्तीफे हवाले करेंगे। इसके अलावा काबीना में शामिल किए जाने वाले नए वुज़रा की फहरिस्त हवाले की जाएगी। मक्के मौज़मा की मस्जिदुल हराम में तोसी के तीसरे मरहले के तौर पर 80 नए इबादती हॉल्स की कुशादगी अमल में लाई है, जो इस साल रमज़ान के दौरान मुसल्लियान के लिए पहली मरतबा किया गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमूमी सदारत ने इस बात का ऐलान किया। मस्जिदुल हराम में तीसरी सऊदी तोसी के अमूमी इंतजामिया के डायरेक्टर वलीद अल मसऊदी ने बताया कि नए हॉल्स ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर हैं, जबकि पहला और दूसरा मस्जिद की दरमियानी मंजिल पर वाक़ है। मुसल्लियान शिमाल में वाक़ दरवाजों से वहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मेन गेट से भी वहां आ सकते हैं। नई सहूलतों से इबादती हॉल्स के 95% का मस्जिद के हिस्से में इजहार होता है जहां वो वाक़ हैं। अब वहां पर 3 लाख मुसल्लियान की गुंजाइश है। अगर अंदरूनी हॉल्स भर जाएं तो शुमाली सहन में मजीद 2,80,000 मुसल्लियान की गुंजाइश है। अलहदा मौसूला इतला के मुताबिक सऊदी अरब में अमूमी सदारत हरमैन शरीफैन ने ज़ायरीन के बढ़ते हुए रश को देखते हुए उम्रा ज़ायरीन की आमद व रफ्त को आसान बनाने की खातिर अल मस्जिदुल हराम में 100 दरवाजे खोल दिए हैं। चीन में कोरोना की वजह से हालात खराब होते जा रहे। मुल्क भर से गुज़िश्ता रोज कोरोना के 16,412 मामले दर्ज किए गए। कोरोना की वबा के आगाज से ये पहला मौका है जब चीन में एक दिन में इतने मरीज पाए गए। सबसे बुरी हालत शंघाई की है, जिसे मौशी राजधानी कहा जाता है। यहाँ मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लोगों को बिलावजह घर से निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ तिब्बी इमरजेंसी की सूरत में ही घर से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही। शंघाई शहर में कोरोना का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी की गई। यहाँ के तमाम 2.6 करोड़ रिहायशियों का कोरोना टेस्ट किया गया। शंघाई के तिब्बी एहलकार लोगों पर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट में गलत नतीजा आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि अगर कोरोना का मामूली सा भी असर होता है तो इससे इसकी निशानदेही हो जाती है। शंघाई की मुकामी इंतजामिया ने बताया कि यहाँ सख्ती की जा रही है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। किसी को तिब्बी इमरजेंसी के अलावा किसी भी हालत में घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं। इंतजामिया ने कहा है कि तमाम लोगों की जांच की गई है और इसके लिए मुख्तलिफ शोबों से हेल्थ केयर वर्कर्स को बड़े पैमाने पर तलब किया गया था। शंघाई के हालात इस कदर खराब हैं कि उन्हें काबू में करने के लिए फौज की मदद ली जा रही है।
आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. मुल्क में गुज़िश्ता 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14वें बार इजाफा। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा। एक बड़ा और बेहतरीन हैदराबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा, जिसमें बड़े पैमाने पर तोसी प्रोजेक्ट के पहले मरहले के बाद बहुत सारे नए इजाफे हैं, इफ्तिताह के लिए बिल्कुल तैयार। हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने नकली पुलिस ओहदेदार को किया गिरफ्तार, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुद को टास्क फोर्स का ओहदेदार जाहिर करते हुए अवाम को लूट रहा था। रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज। अजला में दर्जे हरारत रिकॉर्ड सतह पर दर्ज किया जा रहा, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। खुफिया इत्तला पर स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन टीम रचाकुंडा के एहलकारों ने वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े प्लॉट नंबर 30 सत्यनगर कॉलोनी में मारा छापा। आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी के रैकेट का किया पर्दाफाश। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने फलकनुमा पुलिस के हमरा तारा जर्दा फैक्ट्री पर मारा छापा और इलीगल क़िवाम मटेरियल और अच्छी रेड्डी नगर फलकनुमा हैदराबाद के हमरा 1 लाख रुपए मालियत के दीगर अशिया के बरामद और मोहम्मद जलील खान को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश काबीना में 11 अप्रैल को बड़े पैमाने पर रद्दबदल का इम्कान। वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने 7 अप्रैल को काबीना का इजलास किया तलब। मक्का मुअज़्ज़मा की मस्जिदुल हराम में तोसी के तीसरे मरहले के तौर पर 80 नए इबादती हॉल्स की कुशादगी अमल में लाई, जो इस साल रमजान के दौरान मुसल्लियान के लिए पहली मर्तबा किया गया। चीन में कोरोना की वजह से हालात खराब होते जा रहे। मुल्क भर से गुज़िश्ता रोज कोरोना के 16,412 मामले दर्ज किए गए। कोरोना की वबा के आगाज से ये पहला मौका है जब चीन में एक दिन में इतने मरीज पाए गए। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।